السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، شرعی مسائل کی اس نشست میں ایک مرتبہ پھر چند سوالات کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں۔ سمجھیے اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درختوں کو دن میں پانی نہیں دینا چاہیے، سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد دینا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جب سورج نکل آئے تو درختوں کو پانی مت دو، یا فجر سے پہلے پانی دے لو، یا مغرب کے بعد پانی دو۔ یہ ایک بے اصل بات ہے اور افواہ ہے، اس پر دھیان نہ دیا جائے، یہ توجہ کے لائق نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر چہرے پر ملنا، کیا یہ سنت ہے؟ حدیث پاک سے ایسا ثابت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلے جائیں تو ان کو چہرے پر ملا جائے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے تاکہ ان میں رزق کا کوئی حصہ لگا نہ رہ جائے، رزق کا کوئی ذرہ لگا نہ رہ جائے۔ اور مسح کرنا یعنی ہاتھوں کو کسی کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور پھر پوچھنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے دھونا تاکہ چکنائی وغیرہ کا اثر نہ رہے، یہ بھی ثابت ہے۔ البتہ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ رومال نہ ہونے کی صورت میں وہ اپنے ہاتھوں کو کبھی چکنی چیز کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد، کبھی کوئی چکنی چیز کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور دھونے سے بھی چکنائی کے اثرات ختم نہیں ہوئے، اور اس وقت ان کے پاس رومال نہیں ہے تو انہوں نے اپنے ان ہاتھوں کو اپنے بدن ہی کے بعض اعضاء سے صاف کیا، اس کو رگڑا اچھی طرح سے تاکہ یہ چکنائی کے اثرات ختم ہو جائیں، ہاتھ چکنے نہ رہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ ان کے پاس رومال نہیں ہوا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ ہاتھوں کو چہرے سے پوچھنا یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ ہم اسی کو ادا کریں۔ وہ ایک رومال نہ ہونے کی صورت تھی، ان کے پاس تولیہ نہیں تھی، رومال نہیں تھا، کوئی کپڑا پوچھنے کا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے چہرے سے اپنے ہاتھوں سے پوچھ لیے تاکہ چکنائی کا اثر ختم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم رومال ہوتے ہوئے بھی، تولیہ ہوتے ہوئے بھی اپنے چہروں ہی سے اپنے ہاتھوں کو پوچھیں تبھی سنت ادا ہوگی۔ نہیں، وہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ بھی رومال نہ ہونے کی صورت میں۔ خلاصہ یہ کہ چہرے سے ہاتھ پوچھنا کھانا دھل کر، یہ ایسی سنت نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یا جو لوگ سمجھتے ہیں آپ کے علاقے میں، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ چہرے سے ہاتھ پوچھنا سنت ہے، یا وہ چہرے سے قصداً اس لیے ہاتھ پوچھ رہے ہیں کہ سنت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ عمل اس لیے کیا، انہوں نے خود بتایا کہ اس وقت ہمارے پاس رومال نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے ہم نے ایسا کیا کہ اپنے چہروں سے یا اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو پوچھ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ مقصود شریعت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کی صفائی اچھی طرح کر لیں، پہلے انگلیاں چاٹیں، پھر پوچھیں، اس کے بعد بھی اگر اثر ختم نہ ہو تو دھو لیں، اور دھونے کے بعد پھر اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کر لیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں صحابہ کی یہ وضاحت کرنا کہ اس وقت رومال نہیں تھے اس لیے ہم نے ہاتھوں کو چہروں سے پوچھا، خود یہ بتا رہا ہے کہ عام حالات میں جبکہ ان کے پاس رومال ہوں یا جبکہ ان کے پاس تولیہ ہو، کوئی پوچھنے کا کپڑا ہو، پوچھنے کا کوئی سامان ہو، تو پھر وہ کپڑے ہی سے پوچھتے تھے،
वो उस वक्त हाथों से नहीं पोंछते थे और ना चेहरे पर मलते थे। लिहाजा इस ख्याल को दिल में जगह न दी जाए कि हाथों को खाना खाने के बाद चेहरे से मलना ही सुन्नत है, अगर हमने तौलिया से पोंछ लिया या हमने रुमाल से पोंछ लिया तो सुन्नत अदा नहीं होगी। एक सवालनामा भेजा है डॉक्टर आसिम अली साहिब ने किसरौल मुरादाबाद से। उसमें कई सवालात पै दर पै उन्होंने किए हैं जो सब बुलूग से मुताल्लिक हैं कि बुलूग की उम्र शरीयत मुतहरा ने क्या रखी है, बच्चा जब बालिग हो जाता है तो फिर उस वक्त वो नमाज में अगली सफ में खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर कोई उसको हटा रहा है तो ये जुर्म है या नहीं है। कई सवालात इस ताल्लुक से उन्होंने उसमें लिखे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये जहन नशी कर लें कि बुलूग की कोई ऐसी उम्र मुतय्यन नहीं की है कि उस उम्र में पहुंचते ही हम बुलूग का हुक्म लगा दें, बल्कि बुलूग की कुछ निशानियां बताई हैं फुकाहा किराम ने कि ये निशानियां जब पाली जाएंगी तो बच्चा बालिग समझ लिया जाएगा। जैसे एहतिलाम है, इंजाल है, ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो बच्चा बालिग हो जाएगा। और ये चीज़ें बच्चे ही के ज़रिए आपको मालूम हो सकती हैं कि वो हुई या नहीं हुई, यानी उसका बालिग होना या बालिग ना होना ये खुद उसी की ज़बानी मालूम हो सकता है, हम नहीं जान सकते। अलबत्ता अगर ये अलामतें ना भी पाई जाएं तो 15 साल के लड़के को बालिग मान लिया जाएगा, और 12 साल के बाद ये अलामतें कभी भी जाहिर हो सकती हैं। लिहाजा अगर कोई बच्चा 12 साल के बाद ये कहे कि अलामत पाली गई तो उसकी बात मान ली जाएगी और उसको बुलूग का हुक्म दे दिया जाएगा। अगर कोई अलामत नहीं पाई गई और मर्द है, लड़का है, वो 15 साल की उम्र को पहुंच गया, अब वो बालिग हो गया। जब बालिग हो गया तो जो सारे मुकल्लफीन के हकाम हैं वही उसका भी हुक्म है, यानी वो नमाज में जमात में किसी सफ में भी खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अगली सफ में खड़ा नहीं हो सकता, अगली से पिछली वाली में खड़ा हो सकता है, ऐसा कोई हुक्म नहीं है। बल्कि जब बच्चा बालिग हो जाता है तो अब वो मुकल्लफीन की सफ में आ गया। इसका मतलब ये कि जिस तरह मुकल्लफीन दूसरे लोग किसी भी सफ में खड़े हो सकते हैं, सफ के किसी भी दायरे में किसी भी जगह में खड़े हो सकते हैं, ऐसे ही वो बच्चा भी कहीं भी खड़ा हो सकता है। आपने एक सवाल में ये कहा है कि पहली सफ में कांधे से कांधा मिलना जरूरी है, तो वो बच्चा जो अभी बड़ा नहीं हुआ है वो बड़ों के कांधे से कांधा कैसे मिलाएगा अपना, या कोई नाटे कद का है वो कांधे से कांधा कैसे मिलाएगा। तो मेरे भाई, कांधे से कांधा मिलाने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हर शख्स का कांधे से कांधा मिला हुआ हो तभी सफ मुकम्मल होगी। तब तो फिर एक ही साइज के सारे अशखास, सारे मुक्तदी ढूंढने होंगे ताकि पहली सफ मुकम्मल हो सके। हरगिज ऐसा नहीं है। जो कांधे से कांधा मिलाने का हुक्म आया है उसका मकसद ये है कि आप एक दूसरे से मिलकर खड़े हों और सफ को सीधा रखने की कोशिश करें, बीच में कोई गुंजाइश या ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आकर आपके बीच में दाखिल हो जाए। एक दूसरे से मिलकर चिपक कर खड़े हों, ये मतलब है कांधे से कांधा मिलाने का। वो हरगिज नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये जो आपको समझाया जा रहा है कि कांधे से कांधा मिला होना जरूरी है, लिहाजा 15 साल का लड़का उसमें खड़ा नहीं हो सकता या बालिग लड़का पहली सफ में खड़ा नहीं हो सकता। और अगर कोई ये बात कह रहा है तो वो गलती पर है। इसी तरह वो शख्स जिसने बालिग लड़के को पहली सफ से ये कहकर निकाल दिया कि ये कांधे से कांधा नहीं मिला सकता, वो भी गलती पर है। तो अगर कोई अलामत न पाई गई तो 15 साल का लड़का बालिग हो जाता है। अब उसका वही हुक्म है जो तमाम मुकल्लफीन का है, और 12 साल के बाद वो किसी भी अलामत का इजहार करे तब भी उसकी वो बात मान ली जाएगी और उसको बालिग मान लिया जाएगा। इसी तरह आपने एक सवाल किया है कि जो बच्चा बालिग हो चुका, जिस बच्चे पर नमाज फर्ज हो चुकी, अगर वो अगली सफ में खड़ा हो जाए तो क्या पीछे वालों की नमाज नहीं होगी? ऐसा भी हरगिज नहीं है। आपको बता दिया। आपके सवालात बहुत हैं, लेकिन उनका जवाब बस इसी से समझ लीजिए कि बुलूग की उम्र
15 साल है, 15 साल का जब लड़का हो गया, अब वो बालिग हो गया, उसका वही हुक्म है जो सारे मुकल्लफीन का है। अगर उससे अलग हुक्म कोई बता रहा है तो वो गलती पर है, उसको मोहब्बत से समझाएं कि बालिग होने के बाद कोई भी लड़का मुकल्लफीन के अहकाम में शामिल हो जाता है। अब वो वैसे ही मुकल्लफ है जैसे हम लोग मुकल्लफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला समझने और समझाने की तौफीक नसीब फरमाए। इंतशार बर्पा ना होने दे, मोहब्बत और एतिमाद में लेकर समझाएं। हो सकता है उस शख्स की भी ये समझ में आ जाए कि ऐसा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, या हो सकता है उनकी समझ में ये हो कि ये बच्चा बालिग नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हों। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी और आपको भी राह रास्त पर कायमो दायम रखे। एक सवाल आया है, सवाल यह है कि इस्तिंजे के बाद, इस्तिंजा करने के बाद, फारिग होने के बाद कुल्ली करना सुन्नत है क्या? छोटे इस्तिंजे के बाद यानी पेशाब करने के बाद 2 कुल्ली करना और बड़े इस्तिंजे के बाद 3 कुल्ली करना, ऐसा किसी हदीस में आया है? कोई हवाला है? नहीं मोहतरम, ऐसी कोई सुन्नत नहीं है कि छोटे इस्तिंजे के बाद 2 कुल्ली की जाएं और बड़े इस्तिंजे के बाद 3 कुल्लियां की जाएं, और न ही इसका कोई हवाला है, क्योंकि ये सुन्नत है ही नहीं। किसी हदीस में इस तरह का जिक्र नहीं है कि हमें ये हुक्म दिया गया हो कि छोटे इस्तिंजे के बाद 2 कुल्ली करो या बड़े इस्तिंजे के बाद 3 कुल्ली करो या इस्तिंजा करने के बाद कुल्ली करो, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तिंजा करने के बाद कुल्ली फरमाते थे। ऐसा नहीं है, बल्कि इस्तिंजा करने के बाद वुजू करना सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला सीखने, समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।